गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. यस। Yes, गुड। sir. गुड। So today we will learn graph. We will learn to draw at least two graphs. One is a straight line and the other is parabola. Now one is first order equation and the other is second order equation. And we will learn only to draw graph qualitatively. Qualitatively. We are not going to quantify ये दो है ये चार है. For that we need a graph paper and we need a proper scale to put the points and then connect them and get the curve. But what we will learn approximately, if we look at a function, how will the curve look like? And that helps a lot in our physics, because at many places we will be drawing curve relation between time and displacement, time and position, time and velocity, force and displacement, like that, time and force, and we will be drawing those curves, doing certain calculation using the graph. So it becomes important to know the graphs. There are few graphs which you need to understand. One is first order equation, second is second order equation, then you have logarithmic graph, and then you have exponential curve. So as far as logarithmic and exponential curve is concerned, the day I will teach you log and exponent, that is tomorrow, I will draw those curves then. Because first you must know what is log function, what is exponential function, e to the power something. Then we will learn how to draw those graphs. Right now, we will be concentrating on first order equation. First order equation. What is first order equation? So when I write y is equal to ax plus b, where a and b are constant and the power of x is 1. The power of x is 1, so we call these equations as first order equation. So this 1 power of x, the highest power of x defines the order of the equation. So if x का पावर 2 होगा तो उसको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बोलेंगे, 3 होगा तो उसको थर्ड ऑर्डर इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, तो हम पहले हम लोग टेकअप करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. बड़ा इजी है. फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को देखकर ही हम ये फील कर सकते हैं कि ये कर्व कैसा होगा. ठीक, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना तो जरूर पढ़े हैं. कितने लोग इस इक्वेशन के साथ फेमिलियर हैं? हेलो, यस. तो आप लोग इस इक्वेशन के साथ फेमिलियर हैं. इसको क्या बोलते हैं आप? और इस ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है ना. ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट.
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन कैसा होगा ये हम लोग चुटकी में ड्रॉ करना सीखेंगे। तो इसको भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बोलेंगे, क्यों? पावर ऑफ एक्स इज 1 और ये दोनों कांस्टेंट है। इट लुक्स लाइक y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, m इज लाइक a and c is like b. This is the standard form of equation. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो a कांस्टेंट b कांस्टेंट, और हम लोग जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिखाया गया तो ये भी एक कांस्टेंट था और ये भी एक कांस्टेंट था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। और आप m और c का कोई नाम जानते हैं? क्या बताया गया था, ये क्या है? नहीं, यस, तो C का नाम है y इंटरसेप्ट, और M का नाम है स्लोप। ये स्लोप क्या होता है? tan थीटा। कौन सा tan थीटा? कौन सा tan थीटा? तो यदि हम इसको एक ग्राफ के टर्म में देखें, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस प्लस x, और ये दिस साइड इट इज माइनस x, दिस साइड इट इज प्लस x, दिस साइड प्लस y एंड दिस साइड माइनस। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि हम खींचेंगे इस प्लेन में तो कैसा हो सकता है लाइन? यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको खींचने बोला जाए, इफ यू ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, you can draw like this, 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 you can draw like this. These are the type of straight line which you can draw. ठीक, तो जब भी हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अदर देन दिस वर्टिकल लाइन which is parallel to y axis, rest all will cut y axis somewhere or else. इसको यदि आप छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी लाइन मैंने खींचा सब y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ y, the y coordinate of the point where the line cuts y axis is c. So these are the c of that equation. ये है c, ये है c, यहां c 0 है। तो what is c? What is c signifies what? The point or coordinate, y coordinate of the point where the line will cut y axis. तो बेसिकली मोटी भाषा में को हम पहचानेंगे कैसे? कोऑर्डिनेट ऑफ द point where line will cut y axis. Simple. C is the coordinate of the point where line will cut y axis. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम अभी सी को यदि हम समझने की कोशिश करें, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली सी, तो यदि मैं सी को बोलूं तो सी के वी आर ओनली लुकिंग एट द क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, तो सी के कितने तरह के वैल्यू हो सकते हैं? सी कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है, यस हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, या सी फिर एक नेगेटिव क्वांटिटी, यही हो सकता है। यदि मैं सी का वैल्यू सी एक कांस्टेंट है मैं आपको बोलूं, तो आप सी को बोल सकते हैं सर ये 4 है, या आप बोल सकते हैं सर ये -2 है, या बोल सकते हैं ये 0 है। तो कोई भी आप वैल्यू सी का बोलिए, तो या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या फिर जीरो, यही होगा। तो यदि ऐसा है तो मान लीजिए मैं जब कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ये x, ये -x, ये y और ये -y। अब यदि c का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो मेरा जो लाइन है वो किधर से कट, कहां पर कट करेगा y एक्सिस को? जीरो से लेके ऊपर में कहीं भी कट करेगा। कहां कट करेगा वो हमारे स्केल पे डिपेंड करता है। यदि 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहां कट करेगा। अब यदि यहां 1 और यहां 2, स्केल छोटा कर देंगे तो वो नीचे कट करेगा। वो डिपेंड करता है हमारे क्वांटिफिकेशन पे, हम क्या क्वांटिटी बैठाते हैं एक्स एक्सिस पर, कितना बड़ा स्केल लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो जगह कौन सी होगी। लेकिन वो जब भी होगी वो जीरो से ऊपर, पॉजिटिव की ओर। तो सी यदि पॉजिटिव है तो मेरा लाइन कहीं यहां टच करेगा, तो इसका सी इज पॉजिटिव। इफ आई गेट अ इक्वेशन where value of c is negative, तो कहीं नेगेटिव साइड में कहीं कट करेगा, तो वो नेगेटिव में कट करेगा। Here value of c is negative. And if I get the equation where c is 0, no value of c. No, 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 no. We are only, अभी वो पैरेलल है कि नहीं है वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कट कहां करेगा। तो कहां कट करेगा? ओरिजिन पे कट करेगा, क्योंकि c 0 है। This is c. C is what? Coordinate of the point where it will cut the y axis. So c is equal to 0. तो coordinate of point जिसका y 0 है वो यही है। यहां इस पॉइंट का x और y दोनों 0 है, तो y 0 है तो वो यहां कट करेगा। That means looking at the equation, if I have a positive c, it will cut here. If I have a negative c, it will cut here. If I have a 0 c, it will cut here. You cannot have any other possibility with c. y is equal to mx plus c में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, करेक्ट। तो आपने c को पहचान लिया कि c होने से क्या होगा। अब आइए हम लोग जिसको कि m बोलते हैं, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, हम उसको पहचाने। नोट कर लिए इसको? अब आइए हम लोग m को पहचाने, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में भी हम लोग स्लोप टर्म यूज करते हैं, और ये भी वही है। स्लोप कितने तरह का हो सकता है बोलचाल की भाषा में? अपवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, या जीरो स्लोप। हॉरिजॉन्टल रोड है, रोड एकदम फ्लैट है,
कोई स्लोप नहीं, जीरो स्लोप। साइकिल चलाना है, ऊपर जाना है, अप अपहिल या फिर डाउनहिल, तो तीन ही तरह का स्लोप पॉसिबल है। ठीक, तो यहां भी तीन ही तरह का पॉसिबिलिटी होगा। तो आइए पहले हम लोग समझें कि किसी एक लाइन में एम है क्या। ये है एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस प्लस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन एंड माइनस वाई। एम किसी ने बोला कि एम इज बेसिकली tan थीटा। tan थीटा कौन सा थीटा? तो मान लो मैं कोई एक लाइन खींचता हूं अपहिल, ये सब ऊपर जा रहा है, ये लाइन सब ऊपर जा रहा है, इसको हम अपहिल बोल सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्लस एक्स की ओर हम आगे जा रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक, ये एक एंगल है, लेट अस से दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? tan थीटा 1। इस लाइन का स्लोप क्या है? tan थीटा 2। तो अभी देखिए ध्यान से, हम थीटा 1 मेजर कहां से करते हैं? थीटा इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स। ये तो कन्वेंशन था, हम लोग पिछले क्लास में ही सीखे कि हम एंगल कहां से मेजर करते हैं। तो थीटा इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन यहां भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर है तो यहां से मेजर किए। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव एक्स में चला गया तो कैसे मेजर करेंगे। हम लोग क्या यूज किए हैं? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहां का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर है तो यहां से मेजर करेंगे। इस पॉइंट का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर है तो यहां से ऐसे मेजर करेंगे। तो ये है tan थीटा। यदि डाउनहिल लाइन होगा तो क्या होगा? ये डाउनहिल लाइन है तो इसका एंगल कहां से मेजर होगा? थीटा 3। इसका एंगल थीटा 4। इसका एम क्या होगा? tan थीटा 4। इसका एम क्या होगा? tan थीटा 3। ठीक, तो एक चीज आप देखो ध्यान, क्यों यहां से एंगल ऐसे tan थीटा 3। आप इसका वैल्यू, हाँ तो आपको इसका वैल्यू निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल लोगे। अच्छा मान लो ये वाला एंगल कितना होगा? चलिए सीखे ये हम, हाँ हाँ ठीक है। ये जो एंगल होगा, एक चीज आप यहां देखो जो मैं बोलने जा रहा था वो ये, इफ यू लुक एट द लाइन विच इज अपवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड लाइन का थीटा जो है वो हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा, होगा ना? ध्यान से देखो, अपवर्ड लाइन का थीटा, थीटा ऑफ अपवर्ड लाइन कहां से कहां के बीच में? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यही होगा थीटा ऑफ अपवर्ड लाइन, करेक्ट?
तो इस रेंज में tan थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, साइन भी, कॉस भी और tan भी, तो tan थीटा जो है वो पॉजिटिव है। आप लोग कल देखे। और यदि मैं देखूं डाउनवर्ड लाइन का थीटा क्या है? ध्यान से देखिए डाउनवर्ड लाइन, थीटा ऑफ डाउनवर्ड लाइन क्या होगा? जब भी होगा वो 90 से ज्यादा और 180 से कम। होगा ना? होगा ना? कहीं से भी आप डाउनवर्ड लाइन खींचिए, कैसा भी लाइन यदि डाउनवर्ड है तो वो एक्स एक्सिस पे हमेशा ही 90 से ऊपर होगा। ये सारे के सारे जो है वो होगा। कैन यू ड्रॉ अ डाउनवर्ड लाइन जिसका एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो 90 से कम होगा? नहीं होगा। यानी थीटा ऑफ डाउनवर्ड लाइन इज ऑलवेज 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? यानी कि यहां से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या? यदि m पॉजिटिव है तो लाइन अपवर्ड है, और m यदि नेगेटिव है तो लाइन डाउन। सिंपल निष्कर्ष, वेरी सिंपल कंक्लूजन। m यदि पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जाएगा, और m यदि नेगेटिव है तो लाइन नीचे जाएगी। समझ गए? यही है ना? यस। m यदि 0 है तो tan थीटा 0 है, तो tan थीटा 0 है, तो यदि थीटा 0 है तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। थीटा 0 मीन्स ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, जो सी होगा सो होगा। क्या नहीं कट करे? कर ही सकता है। देखते हैं। नहीं, वहां तो फिर सी नहीं है, वो तो एक्स इज इक्वल टू का एक ही कर्व है जो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू है। फिजिक्स में वैसा कर्व बहुत कम आएगा, नहीं के बराबर। तो अभी हम लोग देखें एम पॉजिटिव और एम नेगेटिव। अब हम लोग देखेंगे कि एम जीरो क्या का मतलब क्या है। हाँ, नोट कर लीजिए।
ठीक, अब आइए, अब देखिए यदि हम एक ऐसे लाइन, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमने बोला भाई मेरा लाइन जो है वो ऐसे है, या मेरा लाइन ऐसे है, तो व्हाट इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। व्हाट इज द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? थीटा इज 0। एंग हाँ तो 180, tan 180 कितना होगा? 180 माइनस 0 या प्लस 0 इज tan 0, tan 0 इज 0, tan 0 इज 0। सो हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही लेते हैं, तो ये 0 डिग्री, तो tan थीटा इज 0, तो m इज 0। तो m यदि 0 है तो हॉरिजॉन्टल, न अपवर्ड न डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल सीधा लाइन। समझ गए? ठीक, तो अब आइए हम इस चीज को समराइज करें। तो मेरा इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। c is intercept, m is slope. Now c की पॉसिबिलिटी क्या है? c can be positive, c can be 0 and c can be negative. Three possibility. When c is positive, intercept is on positive side. Intercept is at origin. Intercept is on negative side. The intercept is on positive side, intercept is at origin and intercept is on negative side. करेक्ट? ये हो गया C का मतलब। M, again M can be positive, M can be 0 and M can be negative. When I say M is positive, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला था tan थीटा, तो ये क्या था? अपवर्ड स्लोप। m is equal to 0, नो स्लोप। नो स्लोप, स्लोप ही नहीं है, 0 स्लोप, उसको डेड स्लोप बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में। हाँ, छत हम लोग बनाते हैं, रूम का फ्लोर बनाते हैं, डेड स्लोप मतलब पानी डालोगे तो कहीं नहीं जाएगा। माइनस इज डाउनवर्ड स्लोप। तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब आइए एक
इक्वेशन देखते हैं और उसका एक इमेज हम अपने दिमाग में बनाते हैं। मान लीजिए मेरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 5। ये मैं आपको बना के दिखाता हूं, -3x प्लस 5। तो इसमें c क्या है? मीन्स पॉजिटिव। m क्या है? -3, दैट इज नेगेटिव। तो हम c और m को पहचान लिए हैं, लिख लीजिए। हम लोग c और m को पहचान लिए। c क्या है? y इंटरसेप्ट, ये c है। यदि इसको हम इस फॉर्म में देखें तो ये c है और ये m है। तो m क्या है? 3 पॉजिटिव, नहीं 3m नेगेटिव, और c क्या है? पॉजिटिव। अब यदि मैं मुझको एक धारणा बनानी है कि यह लाइन कैसा होगा, तो कैसा होगा? हाँ ठीक, यहां कहीं कट करेगा पॉजिटिव, वो 4 है 5 है जो भी है, और उसके बाद स्लोप कैसा होगा? हो गया। तो हम इक्वेशन देखे और लाइन ड्रॉ कर दिया। हम इक्वेशन देखे और लाइन ड्रॉ कर दिए। वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। अभी हम क्वांटिफिकेशन में जा ही नहीं रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, नहीं। हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, और इसको हम फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहां यूज होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व आप लोग बनाइएगा, और फिर आप देखिएगा कि यदि हमको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होता है, तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करके हम कितनी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है। अभी मान लीजिए मैं आपको एक दूसरा इक्वेशन दूं, y इज इक्वल टू 5x माइनस 2। तो यहां m क्या है? m है पॉजिटिव, एंड c क्या है? नेगेटिव। अपने अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, बहुत अच्छा। तो m c यदि नेगेटिव है तो वो यही कहां, यही कहीं काटेगा, और m यदि पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड चला। ठीक, समझ में आई बात? तो ये मेरा 2 नंबर कर्व है। ठीक, अब आइए, तो मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूं, प्लीज ड्रॉ इट।
चलिए 6, ये 6 नंबर, ये 6 कर्व अपने अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए। तो जी नहीं, अभी क्लास वर्क। अच्छा, आप में से जो लोग भी मेरा नॉर्मल क्लास 11 ज्वाइन किए हैं, क्लास 11 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो जो भी थर्सडे बैच चूज किए हैं वो कल से क्लास 11 में क्लास चालू होगा। जिनका बैच थर्सडे है, क्या बेटा? हाँ, 4 to 7। और सैटरडे का टाइम है 11 to 2, और संडे का टाइम है 7:30 to 10। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, वो अभी नहीं चालू होगा, क्योंकि वो उसमें बेसिकली मैं असाइनमेंट डिस्कस करता हूँ। तो एक आध क्लास हो जाए, 2 क्लास, उसके बाद से असाइनमेंट डिस्कस होगा। हाँ, आपके मेल में लिंक चला जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पर चला जाएगा, और आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा। ऑनलाइन का क्लास एक थर्सडे को होगा रात में 10 से 11:30, जो कि नॉर्मल असाइनमेंट्स होंगे, और एक संडे को होगा रात में 10 से 11:30, जिसमें कि कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स के असाइनमेंट होंगे। यस, वो ऑनलाइन ही होगा। तो जिनको एडवांस का भी प्रॉब्लम देखना है उनके लिए 6 घंटे, अदरवाइज 4.5 घंटे। हाँ बेटा, मतलब जो एडवांस का प्रॉब्लम लेगा उसको 3 घंटे का एक लेक्चर और 1.5 घंटे का 2 ट्यूटोरियल। एंड जो एडवांस के प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते हैं, खासकर वो लोग जिनके लिए आईआईटी नॉट टारगेट, नीट वाले, दे कैन मेंटेन ओनली। हाउएवर, यदि आप एडवांस का प्रॉब्लम बना पाते हैं तो नीट आपके लिए आसान हो जाता है, इसलिए एडवाइजेबल है दोनों में आना। लेकिन नहीं बनने से भी वो संडे को रात में 10 से 11:30। आपके पास जो शीट गया होगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, आईआईटी और मेडिकल के फिजिक्स में काफी डिफरेंस, मतलब लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, सिलेबस सेम है। हाँ हाँ, नहीं तो आप क्या ज्वाइन किए हैं मेरा क्लास? नहीं, हाँ ज्वाइन किए हैं तो वो मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। हाँ हाँ, मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, नो बाउंडेशन। ठीक, एकदम। यस, संजुली रॉय बोलिए। हो गया, वेरी गुड।
हो गया। आइए, तो अब मैं बनाना शुरू करता हूं, आप इसको मिलाइए। एक नंबर, m इज पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव। कितने लोगों का ऐसा आया? कितने लोगों का आया? लगभग सबका आया। वेरी गुड। 2 नंबर। हाँ, ये इसी साइड से होगा और किस साइड से हो सकता है? सर, अगर हम दूसरे साइड से करें तो? दूसरे साइड से माने? मतलब क्लास 8 से, क्लास 8 तो वो कहाँ कट, कैसे कट करे? एक अपवर्ड स्लोप का लाइन प्लस एक्स में कीजिएगा तो वो वाई को प्लस में कैसे कट करेगा? जरा ड्रॉ करके हमको दिखाइए तो। सर मैंने किए हैं। कहाँ किया है? अरे ये लाइन ऐसे ही ना हो सकता है, ऐसे ही ना हो सकता है जी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये पॉइंट पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? सी तो आप सर एक एक्सिस से मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ ये नहीं सर, वो ये 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 अरे भाई साहब, तो ये एम तो ये एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये tan थीटा 90 डिग्री से कम है या बेसी है? हाँ, तो 90 डिग्री से बेसी में एम क्या हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, तो फिर तो ये आगे बढ़िएगा तो ये डाउनहिल ना हुआ। ये अपहिल एंड डाउनहिल इज ऑलवेज एज आई एम गोइंग फॉरवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। व्हेन आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन है। आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आप चढ़ाई से आ रहे हैं नीचे, आप नीचे आ रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड स्लोप हुआ ना जी। आप आपका ये आगे जाने, देखिए ये सामने जाने का है डायरेक्शन, ये ऊपर जाने का डायरेक्शन है, ये नीचे जाने का डायरेक्शन है, और ये पीछे जाने का डायरेक्शन है। नॉर्मली हम लोग प्लस एक्स को ही मानते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वही है आगे जाना। ये बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन किसको बोलिएगा आप जब ड्रॉ कीजिएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन किसको बोलिएगा? इसको। अपवर्ड बोलिएगा तो इसको, डाउनवर्ड बोलिएगा तो इसको, बैकवर्ड बोलिएगा तो इसको। तो जब हम स्लोप को अपहिल बोलते हैं तो फॉरवर्ड जाने में ना अपहिल होता है कि बैकवर्ड जाने में अपहिल? बोलिए। आई एम राइडिंग ऑन अपहिल स्लोप, तो फॉरवर्ड जाने में अपहिल, तो ये तो फॉरवर्ड जाने में तो डाउनहिल है। और ऐसे भी यदि आप tan थीटा से सोचिए तो m नेगेटिव है, तो कैसे हो सकता है वैसा? नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज आप y प्लॉट कीजिए c, और उसके बाद देखिए कि हमको सामने की ओर अप जाना है या सामने की ओर डाउन जाना है। समझ में आई बात? हेलो? हाँ, अब आइए 2 नंबर। 2 नंबर में m क्या है बेटा? नेगेटिव। c क्या है? तो क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये x है, ये -x है। वो आप ओरिजिन के पास रखिए या दूर रखिए, वो तो डिपेंड करता है कि आपका स्केल कैसा है। आप बोलिएगा मेरा यहां से यहां तक 1 है, कोई बोलेगा नहीं यहां 1 है, तो लाइन उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। 3 नंबर, m क्या है, c क्या है? तो c नेगेटिव है, m पॉजिटिव है।
कितने लोगों का ऐसा आया? आ गया? सॉरी, बहुत सारा बचा हुआ है। हाँ, 4 नंबर क्या है? M नेगेटिव, C नेगेटिव, C नेगेटिव, M नेगेटिव, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन इट राइट। 5 नंबर क्या है? Y इज इक्वल टू 6। इंटरेस्टिंग। M इज व्हाट? 0। C इज व्हाट? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो C तो पॉजिटिव है, स्लोप नहीं है। यस, नो स्लोप, नो स्लोप। 6 नंबर यहां पर क्या है? C इज इक्वल टू 0। M इज व्हाट? नेगेटिव। तो C0 का मतलब वो कहां कट करेगा? ओरिजिन पे। और M नेगेटिव है मतलब कितने लोगों ने ऐसा बनाया? सबने ऐसा बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। आप जमीन पर खड़े हैं, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका u वेलोसिटी से, क्या होगा? बॉल आपके हाथ से निकलेगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। यहां से t इज इक्वल टू 0 लीव्स द हैंड, and t is equal to t comes back to hand। मेरे हाथ में वापस ऊपर गया मेरे हाथ। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक क्या ड्रॉ करना है? और इसको कैपिटल टी लिख देते हैं, चलिए, एक फाइनाइट नंबर। तो 0 से t तक का इस मोशन का vt कर्व बनाइए। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ड्रॉ vt कर्व फॉर ड्यूरेशन t is equal to 0 to t is equal to t। ड्रॉ। और यदि आप ड्रॉ कर लेते हैं तो इफ यू वांट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। जो आप ड्रॉ करेंगे उसका फोटो
और कोई भेजेगा व्हाट्सएप में? सर हाँ भेजेंगे। हाँ सरबजीत दास, आप भेजे? मिला नहीं? नहीं सर, नहीं सर भेजेंगे। भेजिए भेजिए भेजिए। नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पे? क्या? सर भेज दिए। ठीक। देख रहा हूँ, मैं सबका देख रहा हूँ। चलिए देखें। अच्छा अच्छा, देखिए, कुछ लोगों ने एकदम सही किया है, कुछ लोगों में थोड़ी गलती है। तो सबसे पहले बताइए कि आपको क्लास 9 में क्या इक्वेशन बताया गया था? v इज इक्वल टू यू प्लस ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी। तो इनका डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। तो यदि मैं इस प्रश्न को देखूं, तो मैं क्या बोला जब आपको वेक्टर में पढ़ा रहा था? जब भी आप वेक्टर देखते हो तो पहले तो आपको रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना होगा। तो आपने रेफरेंस फ्रेम क्या डिफाइन किया? से ग्राउंड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये, ज्यादातर लोग यही डिफाइन किए होंगे कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन। वेरी गुड। इस इक्वेशन में u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरे इस इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन कैसा दिखता है? y, अब y नहीं, पहले तो एक बार और लिख लें। v इज इक्वल टू AT प्लस यू। ये क्या है? t। और ये क्या है? v। दैट मीन्स ये मेरा क्या है? y। और ये मेरा क्या है? x। और a एक कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है जो कि g है, और u भी एक कांस्टेंट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये जो मेरा इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू को हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी u इज लाइक c एंड a इज लाइक m। यानी कि स्ट्रेट लाइन में m का जो रोल है वो a से आएगा, एक्सेलरेशन से आएगा, और c का जो रोल है वो u से आएगा।
दे आर सेम। अब देखिए कि जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो मेरा यू क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी कि सी इज पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो दैट इज नेगेटिव, क्योंकि जी जो है वो तो हमेशा नीचे की ओर ही होगा, जी तो कभी ऊपर की ओर होगा नहीं, तो जी इज नेगेटिव। तो माई एक्सीलरेशन इज एम एंड दैट इज नेगेटिव। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि मेरे इस मोशन में u पॉजिटिव है जो कि c के बराबर है और a जो है वो नेगेटिव है जो कि m के बराबर है, तो आप चंद सेकंड में ऐसे लाइन खींचोगे। खत्म। बाकी सब आप सोचो। अब आप ग्राफ को ध्यान से देखो, जिन लोगों ने कुछ ऐसे बनाया, कुछ लोगों ने ऐसे और ऐसे बनाया, कुछ लोगों ने और भी कुछ कुछ आया। आप ध्यान से सोचो कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई? स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सा पॉइंट है? t इज इक्वल टू 0 आपके हाथ से निकला, लीव्स हैंड। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? यहां पर भी क्या है, कहां पर भी 0 होता है? तो ये हाईएस्ट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट। और टॉप मोस्ट जाने के बाद उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गया? तो नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव वेलोसिटी है और नेगेटिव वेलोसिटी में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी में बढ़ रहा है। हाँ, तो स्टॉप होगा, वो कैपिटल टी में ये इतना ही होगा, यहीं पर आके आपके हाथ में जब पहुंचेगा, जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से आपके हाथ में आता है। if your speed was u upward, so when it comes back your speed will be u downward, speed will be u, आप जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से वापस आता है। प्रैक्टिकली नहीं आता है बिकॉज ऑफ एयर रेसिस्टेंस, बट इफ यू नेग्लेक्ट द एयर रेसिस्टेंस देन इट इज सेम। जिस स्पीड से फेंके उसी स्पीड से वापस, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। तो बेसिकली ये टाइम और ये टाइम बराबर है, ये और ये बराबर है, ये दोनों बेसिकली एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। तो ठीक है, लेकिन ये लाइन सीधा ऐसे होगा, ये ऊपर क्यों जाएगा भाई? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हमेशा पॉजिटिव ही है? नहीं है। आप यदि इसको ऊपर कर दोगे वो स्पीड टाइम कर्व हो सकता है, वेलोसिटी टाइम कर्व नहीं। नहीं, दैट्स नॉट भी, वो आर ट्राइंग टू ड्रॉ इज पोजीशन, वो भी गलत। तो VT कर्व इज प्योर स्ट्रेट लाइन। तो कभी भी आपके लिए एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। एज लॉन्ग और योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और आप सिर्फ u और a का डायरेक्शन देखकर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इसी प्रॉब्लम को, ऐसा नहीं है कि कर्व सिर्फ ऐसे ही बनेगा, इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है बनने का। दूसरा तरीका देखिए, यदि मैं बोलूं कि नहीं भाई, मैं लूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। यदि मैं ऐसा लिया तो मेरा u क्या होगा? नेगेटिव, और a क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि a डाउनवर्ड है तो a पॉजिटिव, u अपवर्ड है
तो नेगेटिव। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT में मेरा C आया क्या, नेगेटिव, और मेरा M आया क्या, A जो है पॉजिटिव। तो अब ये जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा, C नेगेटिव M पॉजिटिव, तो ऐसा होगा। तो ये हमारे डिपेंड करता है कि हमने यदि अपना रेफरेंस फ्रेम उलट दिया तो मेरा कर्व भी उलट जाएगा। ये अभी भी टॉप मोस्ट पॉइंट। और जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही एक टर्म जो बहुत लोगों के दिमाग में अलग है वो है डिसेलरेशन। तो आप बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डिसेलरेशन, नॉट नेसेसरी, ओनली दिस पार्ट इज डिसेलरेशन, और यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन पिछले में ओनली दिस पार्ट इज डिसेलरेशन, ओनली दिस पार्ट इज डिसेलरेशन। यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन यहां तो मेरा एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, फिर भी ये डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन इज ओनली स्लोइंग डाउन। हाँ, नेगेटिव होगा, साइन ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बट नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी, नॉट एब्सोल्यूट नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी यदि पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यदि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो जब तक ये दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट है, चाहे जो भी हो, तब तक बॉडी विल स्लो डाउन। देखिए यहां पर क्या है, मान लीजिए ये वेलोसिटी, तो यहां पर इस वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ये स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये एक्सिस के ऊपर आया, अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गया और एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव था ही, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर जैसे ही दोनों एक साइन में हुआ, इट हैज स्टार्टेड स्पीडिंग अप, और जब तक ये दोनों अपोजिट साइन था it was slowing down. Same thing is happening here. In this zone if you look at, A तो मेरा नेगेटिव है ही, यहां पर भी नेगेटिव है, so it is speeding नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीडिंग। लेकिन यहां पर भी जो है वो पॉजिटिव है और ये तो खैर नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन है तो स्लोइंग डाउन। तो जब तक दोनों का साइन अपोजिट होगा स्लो डाउन, जो कि आपको कर्व में भी स्ट्रेट दिखता है। Straight way curve is telling that body is slowing down and then is speeding, and the direction is here. समझ गए? तो स्ट्रेट लाइन, जस्ट इक्वेशन देखकर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज माइनस kx, k is a constant, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये यदि x है और ये यदि f है, तो ये यदि पॉजिटिव है, ये यदि नेगेटिव है, ये यदि पॉजिटिव है और ये यदि नेगेटिव है, ये दोनों वेक्टर है। तो इसका लाइन ड्रॉ कीजिए, तो f वर्सेज x, k इज अ कांस्टेंट। देखिए x का पावर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। यस, हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया, वेरी गुड, गुड। तो हाथ से वाह, एक भाई साहब ने एक क्वेश्चन पूछा कि बॉल वाले प्रॉब्लम में हाथ में यदि 0 से निकला
अरे भाई साहब, यू यदि 0 होगा तो बॉल ऊपर नहीं नीचे ड्रॉप हो जाएगा। हाथ हाथ से निकलेगा, यदि 0 रहेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? कैसे बढ़ेगा? कौन बढ़ाएगा उसको? हाथ को जिस समय आप छोड़े, यदि u 0 है तो वर्ड यूज्ड इन द फिजिक्स इज बॉल इज ड्रॉप्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉल इज थ्रोन एंड बॉल इज ड्रॉप्ड? बस हो गया। बॉल इज थ्रोन मतलब इनिशियल एक वेलोसिटी है, इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, बट व्हेन यू से ड्रॉप्ड, u इज इक्वल टू 0, इट कैन ओनली गो डाउनवर्ड। आप बॉल को छोड़ दीजिएगा तो वो ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो ड्रॉप्ड है। समझ गए? तो u इज इक्वल टू 0 मतलब द टर्म इन द प्रॉब्लम विल बी रिटन एज द बॉल वाज ड्रॉप्ड। बस यही है। 11 में आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझना होगा क्या बोल रहा है। बॉल इज थ्रोन, यू इज नॉट 0। अब ऊपर है कि नीचे है वो बोलेगा, थ्रोन डाउनवर्ड या थ्रोन अपवर्ड। यस सर। तो देखिए इसमें क्या है, ये किस फॉर्म में है? सी क्या है यहां पे? 0। और m क्या है? नेगेटिव है। तो कैसा होगा कर्व? हो गया। मतलब अब इसको इंटरप्रेट कीजिए। यदि मैं, ये एक स्प्रिंग है नॉर्मल, यदि मैं इसको प्लस x की ओर खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? माइनस। स्प्रिंग फोर्स इधर होगा। स्प्रिंग मेरे को खींचेगा। और यदि मैं स्प्रिंग को इधर दबाऊंगा नेगेटिव में, तो वो मुझको पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कर बोल ही रहा है। अच्छा आप मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है? तो हाँ, नॉर्मल स्प्रिंग है। आप गए जिम में और आपने फोर्स लगाया ऐसे, क्या नाम है आपका? हेलो सरबजीत, कौन कौन था? यस, सरबजीत। तो सरबजीत ने ये फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा स्प्रिंग, क्या? तो स्प्रिंग आपको खींचेगा, किधर खींचेगा? आपका एक्स किस डायरेक्शन में है? ये एक्स है, और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है? आपका एक्स है, ये माइनस एफ एक्स है। आप जितना खींचेंगे फोर्स उतना बढ़ेगा, आप छोड़ देंगे फोर्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यही आप यदि ताकत लगा के इसको दबाते तो हो जाता स्प्रिंग ऐसा, और ये होता फोर्स ऑफ सरबजीत। स्प्रिंग क्या करता? बोलिए सरबजीत जी। स्प्रिंग आपको ढकेलता। वेरी गुड। और आप किधर लेके आए उसको? तो आप उसको नेगेटिव में लेके आए, तो फोर्स कहां चला गया?
आप जितना दबाएंगे उतना फोर्स बढ़ेगा। समझे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन टेल्स एवरीथिंग। Yes, sir. तो बहुत जगह ऐसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व। बहुत जगह ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन नहीं भी है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन करके पढ़ते हैं। चेंज इन रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर, हम उसको लीनियर फंक्शन बना के पढ़ते हैं, हालांकि वो लीनियर है नहीं। खैर वो एडवांस क्लास के लिए है कि लीनियर नहीं है, आपको लीनियर ही पढ़ाया जाता है। चेंज इन लेंथ ऑफ अ रॉड विद टेम्परेचर, लीनियर है। चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड विद टेम्परेचर, एरिया के लिए लीनियर होगा। जो लोग पढ़े हैं आइए देखिए। तो चलिए आज मैं स्ट्रेट लाइन ही करके छोड़ देता हूं, क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा कि हम सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशन को सही में अप्रिशिएट कर सके। एक दो दिन तो मैं एक्सटेंड कर ही सकता हूं, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं एक दो दिन एक्सटेंड करूंगा। क्योंकि जिनकी छुट्टी है वो तो छुट्टी है ही, जिनका स्कूल खुल गया है वो खुल गया है। बाकी लोगों का तो 10 से पहले नहीं खुल रहा है मेरे ख्याल से, थर्ड वीक में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो देखिए आप जो जो पढ़े हैं, how do you give the length of a rod on heating? Or say you say delta T. Linear expansion due to heat. हो सकता है सीबीएसई वाले इसको ना पहचानते हो, लेकिन इसको तो पहचानते हैं। चेंज इन रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर, ये शायद था आपके सिलेबस में, नहीं ये भी नहीं था, नहीं था। सीबीएसई में बड़ा मुश्किल है जानना क्या था एक्सपेंशन में। नहीं वो मैथ बताया था, लेकिन सिलेबस के हिसाब से आपका क्या चेंज था लीनियर इक्वेशन में। हीट तो आप लोगों को कभी पढ़ाया ही नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन था आपका वेलोसिटी में, ग्रेविटेशन में फर्स्ट ऑर्डर नहीं था, साउंड में नहीं था। सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है, आईसीएसई वाले तो इससे एकदम फेमिलियर है। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ड्यू टू हीटिंग। तो इसको यदि आप ध्यान से देखिए तो एल डैश इज इक्वल टू एल जीरो प्लस एल जीरो अल्फा डेल्टा टी। अल्फा इज ए कांस्टेंट, एल जीरो इज इनिशियल लेंथ, तो ये भी एक कांस्टेंट है, और ये तो एक कांस्टेंट है इनिशियल लेंथ। तो इसको कैसे ड्रॉ कीजिएगा, ये मान लीजिए डेल्टा टी है और ये जो है वो एल डैश है। तो ये क्या है, ये है मेरा एक्स, ये है मेरा एम, ये है मेरा सी, और ये है मेरा वाई, वाई डेल्टा टी, और ये एम। तो मेरा लेंथ यहां था और टेम्परेचर के साथ ऐसे बढ़ा। जी नहीं, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, आप उतना ठंडा कर दीजिएगा तो छोटा भी हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं आएगा, ये नहीं होगा, लेंथ माइनस में तो नहीं जाएगा, लेंथ जो है वो माइनस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, उसके लिए आपको डोरेमैन का टाइम मशीन में बैठना पड़ेगा। हाँ, कुछ भी, मैं उसका कोई गजट, स्पेशल गजट में, तो आई कैन नॉट इमेजिन हाउ एल कैन बी नेगेटिव। तो ये कर्व सिर्फ इधर ही होगा, लेकिन यस इट कैन गो बैक। आप गर्म करने की जगह पर डेल्टा टी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दीजिए, आप रॉड को ठंडा कर दीजिए। ये तो डेल्टा टी है ना, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यदि पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लेंथ बढ़ रहा है। चेंज इन, ये क्या है, माइनस डेल्टा टी। तो यदि टेम्परेचर घट रहा है तो छोटा होगा, लेंथ कम होगा। क्योंकि ये एल जीरो है,
ये छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया और छोटा हो गया। समझ में आई बात? तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है ये आपको बहुत जगह फिजिक्स में लगेगा और यू कैन जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड। जैसे आपको यहां दिख गया टेम्परेचर, यदि कोई किसी ने पूछा माइनस करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए कि क्या होगा, लेंथ घटेगा। कितना होगा? इफ यू आर इक्वेशन, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तब तो आपको यदि यह इक्वेशन पता है तो डेल्टा टी इतना नेगेटिव है तो एल कितना होगा आप आराम से निकाल लोगे। आपको यदि लाइन का इक्वेशन पता है और आपको किसी एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो वाई नहीं निकाल लोगे? हो गया? यस हो गया। हाँ, तो इफ यू अंडरस्टैंड कि मेरा जो फंक्शन है जो भी चेंज हो रहा है वो यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन। एंड मोस्ट ऑफ द चीज जैसे आपका थर्मल एक्सपेंशन हुआ या रेसिस्टेंस का चेंज हुआ विद टेम्परेचर, आपके क्लास 11-12 में ऑल आर एक्सप्लेन्ड एज अ लीनियर फंक्शन। फर्स्ट ऑर्डर को लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं। लीनियर फंक्शन। तो इस तरह का बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। हालांकि इन ट्रू सेंस दे आर नॉट लीनियर, दे आर एक्सपोनेंशियल, बट देन यस, हम आपको आसान करने के लिए छोटे से डेल्टा टी के लिए वो लीनियर माना जा सकता है। खैर उस डिटेल में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज ए लीनियर फंक्शन। समझ गए? हेलो? यस। तो स्ट्रेट लाइन केवल भीटी कर्व ही नहीं है, बहुत सारा ऐसा आपको फंक्शन मिलेगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। कुछ जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अदरवाइज वो लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कोई फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल है उसको लॉग के टर्म में लिखकर स्ट्रेट लाइन बना दिया जाता है। फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल, लेकिन उसको लॉगरिथमिक टर्म में लिखकर लीनियर बनाते हैं तो ड्रॉ आसान हो जाता है, उसको लॉग स्केल बोलते हैं। हाँ, स्केल ही लॉग हो गया। एक्स वर्सेज लॉग एक्स, यू आर प्लॉटिंग एक्स वर्सेज लॉग एक्स, तो वो एक अलग, तो लॉगरिथमिक स्केल बिकम्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो आज हम लोग थोड़ा पहले रुकेंगे, यहीं रुकेंगे। अगले दिन मतलब कल, हाँ नहीं नहीं नहीं, कल हम लोग लगभग, क्योंकि अब आधे घंटे में मैं शुरू करूंगा सेकेंड ऑर्डर तो वो बीच में फंस जाएगा, तो वो एक ही बार में खत्म कर देंगे। कल मैं पैराबोला खींचना सिखाऊंगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा कि आप इक्वेशन देखकर आप पैराबोला खींच देंगे। पैराबोला कैसा होता है देखने में? दे आर ऑल पैराबोला। ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स का हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। इसके बाद एक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2। वो अब यहां पर ए बी सी का क्या मतलब है ये हम लोग कल देखेंगे। आपको शायद ये तो पता ही होगा कि इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और इसका आप सॉल्यूशन भी जानते हैं। तो ये क्या है? ये अल्फा बीटा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रूट? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन?
मैं यदि ग्राफिकली आपसे बोलूं तो उसका क्या मीनिंग है? अल्फा बीटा क्या है? सीखेंगे सीखेंगे। वो पॉइंट हाँ, कौन सा पॉइंट? अच्छा, एक मिनट, एक 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 सन में तुम नहीं बोलेगा, तुम नहीं बोलेगा। हाँ बोलो, इसमें अल्फा बीटा कहाँ है सरबजीत? यस सर, वो वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को। वो अल्फा बीटा है। अल्फा है कि बीटा है? दोनों है। सर वहाँ पे दोनों ही है सर, अल्फा है। अल्फा भी है और बीटा भी है। अच्छा रनित, अल्फा है कि बीटा है? जो कट किया वो बोल रहा है ये वाला पॉइंट अल्फा है। अल्फा है कि बीटा है? कुछ भी नहीं। हाँ, इस इक्वेशन में अल्फा बीटा है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है। नो रियल रूट। इस पैराबोला में कोई अल्फा बीटा नहीं है, इसमें भी कोई अल्फा बीटा नहीं है। हाँ, ये ऐसा होता पैराबोला जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है तभी ना। यहां पर y का वैल्यू क्या है? 0। यहां y का वैल्यू क्या है? 0। तो तुम क्या लिखते हो? तो इसको जब 0 बोलते हैं तब ना, those values of x for which y is 0, वही अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए y जो है वो 0 है। एंड सेकेंड ऑर्डर के इक्वेशन में अल्फा बीटा दो होता है ना। फर्स्ट ऑर्डर में एक ही होता है जो कट करेगा एक्स एक्सिस को, उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो हम लोग आज नहीं डिस्कस किए। ठीक, तो बेसिकली अल्फा बीटा जो है वो अल्फा बीटा जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है पैराबोला का। और यदि यदि कोई पैराबोला जो है वो सिर्फ ऐसे गया या ऐसे गया तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है। सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो पैराबोला ऐसे टच करेगा। यदि छोटा है तो टच ही नहीं करेगा, और यदि बड़ा है तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि कैसे होगा जानेंगे कल। सर वो एक के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये 100% एक के ऊपर डिपेंड करता है, तो दिखने में कैसा होगा। अच्छा ठीक, वेरी गुड। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? और तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ए को देख लिए, सी को भी देख लिए, बी को काहे भूल जाते हो जी? बी का भी बहुत अच्छा रोल है, कल देखेंगे। थैंक यू। हाँ बोलिए।